ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं गान सरिता के तहत एक गीत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 9 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, నీ అనుగ్రహం ఒక్కటి ఉంటే చాలు, సర్వగ్రహములు నా హస్తగతమే అన్నాడు త్యాగరాజు. సర్వులు ఎందు ఉండినటువంటి యొక్క ఏకాత్మతత్వాన్ని ఒక్కదాన్ని మనం విశ్వసిస్తే ఇవన్నీ ఇప్పుడు నువ్వు సులభంగా మనకు ఏకమైపోతాయి, సులభంగా సాధించడానికి వీలవుతుంది. అన్నింటికీ మూలం ఏదో, అన్నింటికి నీ కీలకం ఏదో, అన్నింటికి నీ గమ్యం ఏదో, దానిని మనం పట్టాలి. అదే ఆత్మతత్వం. దానిని మనం పట్టినామంటే ఇవన్నీ సులభంగా మనకు వశమవుతాయి. చెట్టును కొట్టదలిచినటువంటి వాడు కొమ్మలను ఆకులను తీడివేస్తూ ఉంటే ప్రయోజనం లేదు. వేరును కొట్టివేస్తే చెట్టు కూలిపోతుంది. అదే రీతిగా దైవాన్ని మనం పట్టివేస్తే సర్వము మన వశం అయిపోతుంది. त्यागराजू ने कहा कि यदि एकमात्र तुम्हारा अनुग्रह मुझ पर हो तो सारे ग्रह मेरे वश में हो जाएंगे। सभी में विद्यमान एकात्म तत्व पर यदि हमारी आस्था हो जाती है तो ये सब हमारे लिए आसानी से एक हो जाएंगे और प्राप्त भी हो जाएंगे। सबका मूल आधार जो है, सब में प्रधान जो है, सबका गंतव्य जो है, उसे हमें पकड़ना चाहिए। वही आत्म तत्व है। उसे जब हम अपने वश में कर लेते हैं तो ये सब सरलता से हमारे वश में हो जाएंगे। पेड़ को काटना चाहने वाले द्वारा डालियों और पत्तों को तोड़ते रहने से कोई प्रयोजन नहीं है। जड़ को काट देगा तो पेड़ गिर जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर को थाम लेने पर सब कुछ हमारे वश में हो जाएगा। కనుక ఈ విధమైన దైవాన్ని పట్టాలనుకున్నప్పుడు ఈ దేహ మనస్సుల యొక్క తత్వాన్ని కూడాను కొంతవరకు మనం సాధన మార్గంలో సాధిస్తూ రావాలి. కనుక పూతదైన మనం పెంచుకోవటం, సర్వాత్మ భావన మనం అభివృద్ధి పరచుకోవటం, దేహం యొక్క పరిశుద్ధము, మనస్సు యొక్క పవిత్రతను అభివృద్ధి పరచుకోవటం, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నిత్య చర్యల లోపల, నిత్య జీవితం లోపల సాధనలు సలిపినప్పుడే దైవత్వం మనకు సులభంగా అర్థమవుతుంది. కనుక సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి, సర్వులు ఎందుకు కూడా ఉండినటువంటి యొక్క భగవంతునికి నేను ఒక నమస్కరిస్తున్నాను అని మనం భావించాలి. అంతటితోనే మనం ఆపకూడదు మన సాధనను. సర్వజీవ తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి, దాన్ని కూడా రెండో అడ్డుగా పెట్టుకోవాలి. अतः ईश्वर को अपनाने के लिए हमें देह और मन के तत्वों पर साधना के द्वारा विजय पानी चाहिए। अपनी दैनंदिन चर्याओं में प्राणियों के प्रति दया को बढ़ाते हुए, सर्वात्म भावना को बढ़ाते हुए और देह तथा मन की पवित्रता को बढ़ाते हुए साधनाएं करने पर ही दैवत्व हमें सरलता से अवगत हो सकता है। सर्वजीव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए
कि सभी जीवों में विद्यमान ईश्वर को मैं प्रणाम कर रहा हूं। यहीं पर हमें अपनी साधनाएं नहीं रोक देनी चाहिए, बल्कि सर्वजीव तिरस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, इस वाक्य को भी साथ में लेना चाहिए। మన జీవితము ఒక పెద్ద ప్రవాహం. ఈ ప్రవాహమును విచ్చలవిడిగా వదిలిపెట్టినప్పుడు అన్ని గ్రామములు, అన్ని భూములు, అంత జీవులను కూడా ధ్వంసం చేస్తుంది, గ్రామములను ముంచి వేస్తుంది. కానీ దీనిని భరించేటువంటి యొక్క సాగరం దగ్గరికి దీనికి పంపేటువంటి ఉపాయం మనం తీసుకోవాలి. ఈ నదులను అనుగ్రహించేటువంటి వాడు, భరించేటువంటి వాడు, వరించేటువంటి వాడు, తరించేటువంటి వాడు ఒక్క సాగరుడే. हमारा जीवन एक बहुत बड़ा प्रवाह है। इस प्रवाह को उच्छृंखल छोड़ देने पर वह सभी गांवों और सारी जमीन को बर्बाद कर देता है, सबको डुबा देता है। परंतु इसे आत्मसात कर लेने वाले सागर तक पहुंचाने के उपाय को लेना चाहिए। इन नदियों को अनुग्रहित करने वाला, सहने वाला, वरण करने वाला और तरने वाला एकमात्र सागर ही है। కనుకని ఇది సాగరంలో ఏ రీతిగా మనం చేర్చడం, దీనికి భగవద్గీత యందు 2 గట్టులను మాత్రం కట్టుకోమని చెప్పింది. ఈ నదికి ఇటువైపున అటువైపున గట్టు ఉండినప్పుడే ఏ భూములను, ఏ గ్రామంలో ఉంచకుండా నేరుగా సముద్రంలో పోయి చేరిపోతుంది. ఏమిటి ఈ గట్లు? అదే అష్టాక్షర నామము అని బోధించాడు. ఏమిటి అష్టాక్షర నామం? ఓ నమో నారాయణ కాదు, సంశయాత్మ వినశ్యతే. ఇది సంశయాత్మ వినశ్యతే, నిస్సంశయుడుగా నీ ఉంటుండు అనే గట్టును ఒకవైపున కట్టుకో. రెండవ వైపున శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, ఇది 8 అక్షరాలది. ఈ శ్రద్ధను ఒకవైపున పెంచుకో. నిస్సంశయం అనేటువంటిది ఒక గట్టు, శ్రద్ధ అనేటువంటిది ఒక గట్టు. ఈ రెండింటినీ మనం గట్టులుగా తీసుకుంటే మన జీవితం అనే ప్రవాహం అనుగ్రహం అనే సాగరంలో లీనమైపోతుంది. इसे सागर तक कैसे पहुंचाया जाए? इसके लिए भगवत गीता में 2 तटबंध बनाने का उपदेश दिया गया है। नदी के दोनों ओर इन तटबंधों के रहने पर यह बिना किसी गांव या जमीन को डुबाए सीधे सागर में पहुंच जाती है। ये तटबंध क्या हैं? उन्हीं को अष्टाक्षर नाम कहा गया है। क्या है यह अष्टाक्षर नाम? क्या ओम नमो नारायणाय है? नहीं। संशयात्मा विनश्यति, एक ओर निःसंशय भावना के साथ रहते हुए संशयात्मा विनश्यति के तटबंध को बना लो। दूसरी ओर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये 8 अक्षर हैं, स्वयं में श्रद्धा को बढ़ाओ। निःसंशयता एक तटबंध है, श्रद्धा एक तटबंध है। इन दोनों को तटबंधों के रूप में लेने पर हमारा जीवन रूपी प्रवाह अनुग्रह सागर में विलीन हो जाएगा। ఈ ఉపాయముని జీవిత ప్రవాహమును అనుగ్రహం సాగరం లోపల లీనము గావించేటువంటి ఇది భక్తి ప్రపత్తి యొక్క తత్వమును బోధిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. నాయన, మానవుని యొక్క గమ్యము అదే. గమ్యమును మరవవద్దు, లోకమును నమ్మవద్దు, మరణమునకు భయపడవద్దు. ఈ మూడింటిని నీకు నిజమైనటువంటి మంత్రములుగా బోధిస్తున్నానన్నాడు. కనుకనే గమ్యము దైవము, దైవాన్ని మరవకూడదు, ఈ లోకాన్ని నమ్మకూడదు, మరణానికి భయపడకూడదు. ఈ మూడింటిని మీరు మంత్రములుగా తీసుకొని జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోండి. जीवन प्रवाह को अनुग्रह सागर में विलीन करने के उपाय के रूप में भक्ति प्रपत्ति का श्री कृष्ण उपदेश देते आए। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मानव का लक्ष्य वही है, लक्ष्य को मत भूलो, जगत पर विश्वास मत करो और मृत्यु से मत डरो। इन तीनों को असली मंत्रों के रूप में उपदेश दे रहा हूं। लक्ष्य ईश्वर ही हैं, अतः ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जगत पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन तीनों को मंत्रों के रूप में स्वीकार कर तुम अपने जीवन को धन्य करो। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण।
तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण। तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण। तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण। तनु मन रंजन भव भय भंजन असुर निखंडन नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण। जब जब पीड़ा पड़े भक्त पर बार बार अवतार किया। जब जब पीड़ा पड़े भक्त पर बार बार अवतार किया। पाप मिटा कर धीर दिखा कर मानव को उद्धार किया। पाप मिटा कर धीर दिखा कर मानव को उद्धार किया। पाप मिटा कर धीर दिखा कर मानव को उद्धार किया। मानव मिटा कर धीर दिखा कर मानव को उद्धार किया। कुंज विहारी कृष्ण मुरारी हे गिरिधारी नारायण। 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 नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण। मत्स्य कूर्म वराह नरहरि वामन को अवतार किया। मत्स्य कूर्म वराह नरहरि वामन को अवतार किया। परशुराम और राम कृष्ण बन, परशुराम और राम कृष्ण बन दुष्टों को संहार किया। दुष्टों को संहार किया। हे अवतारी लीलाधारी कुंज विहारी नारायण। हे अवतारी लीलाधारी कुंज विहारी नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण। भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग सिखला दिया। भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग सिखला दिया। साई भजन से भव सागर को पार नबी सिखला दिया। साई भजन से भव सागर को पार नबी सिखला दिया। पति तो धारी पति विहारी हे गिरिधारी नारायण। पति तो धारी पति विहारी हे गिरिधारी नारायण। पति तो धारी पति विहारी साई मुरारी नारायण। पति तो धारी पति विहारी साई मुरारी नारायण। नारायण
भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। साई प्रेम वाणी की गान सरिता में तहे दिल से आपका स्वागत है। मानवता के उद्धार के लिए, भक्तों में आनंद के संचार के लिए और जगत में प्रेम के प्रसार के लिए भगवान ने कलयुग में साई रूप में अवतार लिया और अपने प्रत्येक पल और प्रत्येक कदम से मानवता का उद्धार किया। इस भाव को पिरोया गया है एक सुंदर सूफियाना प्रकार की कव्वाली में। स्वामी को संगीत का ये स्वरूप बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं ये भक्ति भाव से भरपूर कव्वाली, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे। चमकती आंखों में सपने सजा कर आए हैं, गुलशन बसाने को तोहफे हजार लाए हैं। शिरडी में बगिया जो लगाई थी मेरे साईं ने, परती की धरती पे उसको महकाने आए हैं। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे, पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे,
पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे, शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, कहीं से कहीं से कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, कहीं से भी किसी ने पुकारा कभी, जब भी मुश्किल में मांगा सहारा कभी, जब भी मुश्किल में मांगा सहारा कभी, गलतियां करके लाखों कोई हारा कभी, गलतियां करके लाखों कोई हारा कभी, फिर भी एक बार उसने पुकारा कभी, फिर भी एक बार उसने पुकारा कभी, सुन के सच्ची पुकार कर दी करुणा पार, सुन के सच्ची पुकार, सुन के सच्ची पुकार कर दी करुणा पार, करके उसको क्षमा दिए लाखों उपहार, करके उसको क्षमा दिए लाखों उपहार। हो जाने कितने ही, हो जाने कितने ही जीवन सवारे, जाने कितने ही जीवन सवारे, शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे पधारे शिरडी परती में साईं पधारे। टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया, मेरे साईं ने, मेरे साईं ने, मेरे साईं ने, टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया, टूटे दिल तो खुशी से उन्हें भर दिया, कुछ अंधेरी सी राहों को रोशन किया, कुछ अंधेरी सी राहों को रोशन किया, कितने मुश्किल सफर को आसान कर दिया, कितने मुश्किल सफर को आसान कर दिया, और सच्चाई पर चलने का रास्ता दिया, और सच्चाई पर चलने का रास्ता दिया, हमको जीने का मकसद साईं ने दिया, हमको जीने का, हमको जीने का मकसद साईं ने दिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया, साईं तुम हो, ओ साईं तुम हो हमारे हमारे, साईं तुम हो हमारे हमारे, हम तुम्हारे 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 तुम्हारे
ओ सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, शिरडी परती में साईं पधारे। साईं रस्तों में साईं मंजिल में, साईं रस्तों में साईं मंजिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं रस्तों में साईं मंजिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं लहरों में साईं साहिल में, साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं धड़कन में साईं कण कण में, साईं पल पल में साईं हर पल में, साईं पल पल में साईं हर पल में। ओ साईं हर पल है साथ हमारे, साईं हर पल है साथ हमारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, शिरडी परती में साईं पधारे। सबको देने को लाखों सहारे, सबको देने को लाखों सहारे। शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, शिरडी नगरी में साईं पधारे पधारे, शिरडी नगरी में साईं पधारे पधारे, पुट्टापरती में साईं पधारे। साईं अवतार में शिरडी में जो बगिया भगवान ने लगाई थी, आज उसकी सुगंध इस सत्य साईं अवतार में स्वामी ने महकाकर संपूर्ण विश्व में फैला दी है। ये कव्वाली श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति साईं संस्कार गीतमाला भाग 2 से ली गई है। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।